अस्सलाम वालेकुम ਵੀਵਰ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਮੀ ਚੌਧਰੀ। ਵੀਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ AI ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, लेकिन इनू रिलीज बाद जो किया गया है। तो आइए असी शुरू करने हैं। सिद्धू भाई का एक गाना ही काफी है ये बताने के लिए कि वो क्या चीज है। भाई 24 घंटे हुए हैं अभी गाना आए को, 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। मैं अभी देख के आया हूं, तो क्या कमाल का बंदा है भाई। और लॉक क्या मतलब है इस वर्ड का, क्या मतलब है इस गाने में, और कैसे अगर आप एक शरीफ बंदे को बार बार तंग करते रहते हो तो उसका नतीजा क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। और चलिए इस गाने का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। अच्छा, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓਗੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਫਟੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। भाई अगर आप लोगों ने अभी तक ये गाना नहीं सुना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले अभी जाके सुन के आओ, आंखें बंद करके उसको सुनना, आपको फील होगा क्या पावर है म्यूजिक में और लिरिक्स में भी। और फिर आके इस वीडियो को देखिएगा एंड फिर जाके दोबारा गाने को सुनिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और उन वर्ड्स की पावर के पीछे मतलब क्या है वो सारी चीजें समझ आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाने की। अच्छा, एक होर इन्होंने गल की कि तुसी गाने ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਰਿਕਸ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। तो गाना कहता है कि जदों झाके खुलदे ने घरे ताले लगदे ने। सो झाका और ताले को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। ताला तो लॉक ही हो गया जिसको आप ताला कहते हो, और झाका होता है झिझक। तो जब झिझक निकल जाती है ना तो घर पे ताले लग जाते हैं। झिझक की यहाँ पे बात हो रही है। एक आम इंसान को आप इमेजिन करो, मैं और आप, आई डोंट नो, जो भी लोग देख रहे हैं, किसी को मारने से झिझकेंगे ना, डर लगेगा, सोच में भी नहीं आएगा किसी को मार कैसे सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है, सजा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई बार बार तंग कर रहा है, आपकी फैमिली को तंग कर रहा है, आपके साथ फालतू की दुश्मनी ले रहा है, अगर आपको कोई मारने आ रहा है और आप सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए उसको मारने की कोशिश करेंगे तो झाका खुल गया ना, क्योंकि अब बात अपनी जान पे आ गई है। तो उसी की बात हो रही है कि जब वो झिझक निकल जाती है ना तब घर पे ताले लगते हैं। अब सारा गाना इसके अराउंड घूमेगा कि घर पे ताले कैसे लगते हैं। धक्के नाल दबिया कोई किन्ना चिर झुकदा है। सवाल है, आप भी सोच के देखिए। अच्छा, इस बारे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਟਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। किसी को आप जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी देर तक उस चीज को सहता रहेगा। आपने हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। इंडिया आजाद हुआ है, सिखों की कहानी है, और भी राजपूत राजे, जो भी लड़ाइयां हुई हैं वो इसी चीज में से निकल। ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ उभर के एकदम ही बाहर आई हैं में से निकल के आई हैं कि बार बार किसी को पोक करोगे वो कितनी देर तक तुम्हारा मुंह देखेगा बैठ के, आखिर को वो भी हथियार उठाएगा। फिर डांग तो शुरू हुंदा घोड़े ते मुकदा है। ये वैसे बहुत छोटी चीज है, हम अक्सर गांव में देखते हैं कि जो लड़ाइयां होती हैं ना, वो पहले बहस होती है, फिर थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, और जब ऐसे दुश्मनी बढ़ती जाती है ना तो फिर घोड़ा ट्रिगर होता है ना, जो गन का, उसकी बात हो रही है। और डांग होती है बड़ी सी स्टिक, जैसे आप कोई भी स्टिक हो उसका बड़ा रूप डांग उसको कह देते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ऐसे लाठियों से, जिसको आप लठ कह देते हो, लाठियों से शुरू होती है, हाथापाई से शुरू हुई बात, लेकिन फिर कत्ल भी हो जाते हैं क्योंकि गन्स की बात आ जाती है, ट्रिगर की बात हो रही है। एडवाइस या उन्हां नूं जो साडे बाले लगदे ने, बाले का मतलब होता है बहुत, बहुते। सो दो चीजें हैं यहाँ पे, उन लोगों को एडवाइस है जो हमारे साथ बहुत ज्यादा लगते हैं। एक चीज ये भी हो सकती है कि जो बहुत ज्यादा दुश्मन हमारे बने हुए हैं, जो हमारे साथ बहुत, जिनका क्लैश है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो ऊपर ऊपर से बाले हमारे बनते हैं, यानी बहुत ज्यादा हमसे जताते हैं ऐसे कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अंदर से दुश्मनी पाल के बैठे हुए हैं। अच्छा, अक्सर ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ ਹਸਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो दोनों के लिए ही है कि जो हमारे साथ बहुत ज्यादा या तो क्लैश करते हैं या बहुत ज्यादा ऊपर से दिखाते हैं, उनके लिए एडवाइस है ये। और वो एडवाइस क्या है, फिर आगे हुक लाइन आ जाती है कि जब तो झाके खोल देने, जब झिझक खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, घर पे ताले लगते हैं। अब आगे और भी एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे। जेड़े रड़क गए अखां च खब्बी खान बरोबर ने, बड़ी सुंदर सी चीज है कि अपनी दुश्मन को सिद्धू भाई बराबर ही कह रहे हैं। कहते कि जितने बड़े तुम हो उतने ही बड़े हम हैं, खुद को खब्बी खान समझते हो ना, उतनी बड़ी हमारे में भी पावर है। रड़कना मतलब होता है चुभना, आपकी आंख में कुछ चला जाए और वो जो चुभता है उसको रड़कना कहते हैं। लेकिन इस रड़क का मतलब है वो इंसान जिसको आप देख नहीं सकते, अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आपका खून खौलने लग जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अपने दुश्मनों की बात कर रहे हैं, जो बड़े खब्बी खान बन रहे हैं ना, वो कोई बहुत ऊंचे नहीं है, हमारे बराबर के ही हैं। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੜਕਣਾ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। जदों भज्जण ते ही आ गए फिर वाण बरोबर ने। वाण क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे वाही की होती है ना खेत में, उसको वाण कहते हैं। अब अगर आप वहां पे भागने की कोशिश करोगे, उसमें भागना मुश्किल होता है, उसमें भागने की कोशिश करोगे तो जितनी मुश्किल मुझे आएगी उतनी मुश्किल मेरे कंपेटिटर को भी आएगी जो मेरे ऑपोजिट भाग रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब तुम लड़ने पे ही आ गए, चाहे वो मुकदमे की बात हो, चाहे वो गोलियों की बात हो, चाहे वो हाथापाई होने की बात हो, चाहे वो शब्दों की बात हो, जब लड़ने पे ही आ गए फिर मैदान बराबर है दोनों के लिए, बराबर की सहूलतें हैं, बराबर की मुश्किलें हैं, बराबर का जोर है। साडा माड़ा सोच दे जो कि साडे साले लगदे ने। यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती हैं। माड़ा होता है जी बुरा, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा बुरा सोचते हैं क्या वो हमारे साले लगते हैं। ये वहां पे भी यूज होता है कि कहना हो कि ये कौन है मेरा साला लगता है, कि ये कोई मेरा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ साला गाल के रूप में यूज होता है, ऐसे भी यूज होता है अच्छे रूप में भी, कि ये कौन सा मेरा कोई रिश्तेदार लगता है, ये सगा लगता है। तो वही कि जो मेरा बुरा ही सोच रहे वो मेरे सगे थोड़ी हैं। वो ऐसी अपनी जिंदगी दे सीईओ हो गए जे। किसी कंपनी का जो सीईओ होता है ना, आप सभी को पता होगा, सभी ने जिंदगी में सुना होगा सीईओ क्या होता है।
बड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, गूगल के सुंदर पिचाई सीईओ हैं। गूगल के जितने भी फैसले होंगे उनमें बहुत बड़ा हाथ होगा उनका, वो बहुत बड़ी पावर रखते हैं फैसले लेने में, फैसलों को रद्द करने में। तो यहाँ पे सिद्धू भाई कह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी के खुद सीईओ हैं, यानी अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे अपनी जिंदगी को किस ये साइड पे फैसले लेके जाना खुद है, लेने अच्छी हैं। है बुरी है, मैं अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी के फैसलों का खुद मालिक हूँ। घरे थोनू भी नहीं बहन दिंदे, असी पीओ हो गए जे। पीओ के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग गैंग वगैरह को फॉलो करते हैं ना, उनको समझ आ गया होगा। प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर होता है वो इंसान जो इतने सीरियस क्राइम कर चुका है कि अदालत ने अब सुना दिया है, जहां भी दिखे इसको पकड़ के अदालत में हाजिर कर दो, भगोड़ा भी कह देते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। एक सादा अल्फाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। अब अगर कोई इंसान भगोड़ा हो गया है या प्रो क्लेम के ऑफेंडर बन चुका है, सरकार उसके खिलाफ हुक्म सुना चुकी है अदालत, वो घर पे थोड़ी बैठेगा। पता है ना, घर पे आके उसको पकड़ के ले जाएंगे, जब पुलिस हर जगह ढूंढती है और हर वक्त। तो सिद्धू भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर ऐसा मुकाम आया, हमारे ऐसे हालात हुए, तो घर पे तुम्हें भी नहीं बैठने दें। फिर काम जे ओ होने जो जूड़ी फाड़े लगते हैं। फाला लगाना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी लकड़ी की ये जो खाट होती है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसके जो लेग्स होती हैं वो हिलने लग जाती हैं। तो उसमें स्पेस होती है अगर, और यहाँ फिर स्पेस बन जाए, तो उसमें छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ना ऐसे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਅੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ चीज़ ਨੂੰ मैं कह रहा। धड़ के ठोक देते हैं। तो यहाँ पे भी ठोका ठकाई की बात हो रही है कि भाई फिर वही काम होंगे। जदों वैर बट्टे हुंदे फिर जेलां ही हुंदियां ने। बटना का मतलब होता है किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेनी, बटौना हो गया जैसे। तो बेसिकली कमाने की बात हो रही है कि जब दुश्मनी कमा ही ली तो फिर जेलें होती हैं। ना छुट्टियां मिलदियां ने, ना बेला हुंदियां ने। तो ना तो बेल मिलेगी ना छुट्टी मिलेगी, सीधी सी बात है। इसमें तो कुछ कोई 2-5 वाली बात ही नहीं है कि आपको समझाना पड़े। छुट्टी और बेल की बात हो रही है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि चुल्ले का उगदे ने खूंजे जाड़े लगदे ने। ये पंजाब में भी चलता है, शायद बाहर भी चलता हो, कि चूल्हे जो होते हैं, मिट्टी के चूल्हे की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें घास उग जाता है और खूंजे होते हैं कॉर्नर्स, वहां पे जाले लग जाते हैं। अब इसकी सीधी सी बात है, ताले से शुरू हुआ था ना, जब झिझक खुलती है घर पे ताले लग जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, अब जब कोई चूल्हे को यूज ही नहीं कर रहा तो उस पे घास ही आई है ना। मिट्टी के चूल्हे की बात हो रही है यहाँ पे, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਲੇ लग जाएंगे। आज की जो जेनजी हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा वो कैसा होता है। गूगल कर लेना, यहाँ पे फोटो भी लगा देते हैं आपके लिए। और कॉर्नर्स में जाले लगे, बेसिकली घर उजड़ जाता है ना, जब कोई रह नहीं रहा, ना सफाई हो रही है, ना खाना बन रहा है। तो ये पूरी ना, ये स्टोरी टेलिंग बड़ी सुंदर लगी मुझे कि इस हुक लाइन से शुरू किया है, जब झिझक खत्म हो जाती है, घर पे ताले लग जाते हैं, और वो कैसे लगते हैं और उसका अंजाम क्या होता है, वो पूरी स्टोरी खत्म की है। दैट इज वाई वी लव सिद्धू मूसेवाला फॉर हिज अमेजिंग राइटिंग स्किल्स। पता चल जाता है कि कौन सा गाना सिद्धू भाई ने लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म है। सिद्धू भाई के और भी गाने आपकी स्क्रीन पे है, जरूर इनको चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।